Can you see the picture of group discussion, everyone? Yeah, I will say. ओके मिस तायरा, आप भी मतलब रिस्पॉन्ड करती रहिएगा, ठीक है? ओके। First, six participants are in the meeting. First, I would like to introduce myself. My name is Sana Farooq. I am your instructor of Business English and Communication. So, in this program, this is whole designed for you students. If you want to excel your English speaking and your English writing, so we are here to provide you a platform. Sir Amir, the founder of the Scale Up Online platform, and I am the instructor here. So yesterday was the session, but I guess there was some net issue and the students were little busy. That's why they did not participate. But today, first we will take the introduction of our students. Miss Saika Waheed, unmute your mobile and introduce yourself. Why you want to join this and what's your name and all these things. Introduce yourself, Miss Saika. First of all, Assalamu alaikum, everyone. I'm Saika Wahid. I did MSc Mathematics and then I studied hotel management from Kotham, and then I know that English language is very important and it is very important to communication with the other peoples. Yes, mashallah, you have a good in you have good intention to speak English, and you will, inshallah, learn so many skills out of this course. Yes, yes, sure, inshallah. Mohammad Zaid, can you introduce yourself? What's your profession and why you want to join? Mohammad Zaid, Hello, hello, अस्सलाम वालेकुम मैम. welcome, Salam. Ma'am, my name is Mohammed Ziad and I have done BS Computer Science and now I am doing a job in Bank Islami as a cashier. I am interested from long time to take some proper course or proper education for learning English. So I am very interested in this course and I hope I will learn too much from this course. Inshallah. Thank you so Thank you. much. You will be, inshallah, have the skills and you will speak soon in this course. It is designed only for fulfilling the needs of you all. जिसको इंग्लिश बोलनी है, जिसे लिखनी है, और सिर्फ इंग्लिश बोलना लिखना नहीं, हम इसे ऑफिशियल अंदाज में किस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन होती है आपकी, उसको तरह हम डील करेंगे. The next one is we have Armin Matabishi. Armin, kindly introduce yourself. Mr. Armin, can you listen me? Mr. Armin Matabishi, unmute your mobile and introduce yourself, Armin. I think Armin is not available. Mr. Ayaz Ahmed is, I think, in traffic, he said to me. Ayaz Ahmed, can you introduce yourself? Mr. Ayaz Ahmed? Okay, Ayaz Ahmed, I think, is busy. He's just coming to his home back. He's driving somewhere. Maybe that's why he can't listen. Miss Tahira, are you with us? Okay. Shall we start, Sir Amir? Sir Amir? Yes, Ms. Sana, please start your routine Yes. Okay, sir. Sir proceeding. Farooq Naveed has not joined. Sir Farooq will join. Farooq Naveed have some, uh, I think she is not at home at the Okay. time. Okay, sir. Maybe Let's just he joined us later on. okay, guys. First of all, we will just start up with our daily routine.
लाइक हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसको। लाइक मैं अगर Orman, Mr. Orman, Mr. Orman, do you listen us, Mr. Orman? मिस्टर अरमान Asya, Mr. Orman is there. Mr. Orman, do you listen us? मिस्टर अरमान मैं कॉल करती हूँ व्हाट्सएप पे। Okay, okay, it's fine. Miss Sana, please carry on. मिस्टर अरमान को आप कॉल करके बोल दें, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर Okay, रहे। okay, I will call. ओके स्टूडेंट्स, हम अपना पहले स्टार्टअप करते हैं। मैं जरा देखना चाह रही हूँ आप लोगों की इंग्लिश कहाँ पर है। आप लोगों को मैं बेसिक से लेके चलूँ, टेंसेज और पूरा थोड़ा सा दूँ, या फिर हम डिस्कशन पे आ जाएं और हम लोग रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आपका प्रेसी हो गया, लेटर, ईमेल या कुछ भी इंग्लिश में ड्राफ्ट करने के लिए आपको टेंसेस, आपकी वॉइसेस, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए कि आप लोग कुछ ड्राफ्ट कर सको। आई नो यू ऑल आर प्रोफेशनल्स, बट किसी का माइंड होता है इंग्लिश पे, किसी का नहीं होता। बट इंग्लिश इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑफ अस। So Mr. Arman is there. He's on video call. Mr. Arman, can you introduce yourself? Why you want to join this course? Yeah, thank you so much. I'm sorry for the delay. My name is Armen Matabishi. Yeah, I'm happy to be part of this new course. And what I'm expecting is to learn a lot and to have a new skills in English business, and to see how we can do better in our work every day. Thank you so much. What are you working, Arman? What's your professional life and how you think that English is need for your professional life? Can you just Yeah, explain a little bit? yeah, my professional life, I'm humanitarian. I work in Adife World. I'm a general director of Adife World, and that is my professional life. Yeah. What do you do? I Yeah, couldn't understand. I'm a general director of Adife World. Okay, you are engineer. You say? You are engineer. Like you are saying, you are engineer. No, I'm a lawyer. Okay, okay, Yeah, okay, I'm a lawyer. okay. Let's start. It's our Thank you so second. much. Thank you so much, Mr. Arman. And right now I would like to start with Miss Saika. Miss Saika, or shall I just start? We are talking about something like group discussion a little bit. Then we will go on a lecture. मैं ये देखना चाह रही हूँ. I want to see that how much your level of English is. Is I have do I have to start from the basic tenses and voices, grammar, all, or just I will have to push you to speak up. That's why I just want a little daily routine of your life. Like if I say I wake up early in the morning, I go to my office. In the daily routine, we use present indefinite tense, simple present tense. Like we are talking about our daily routine. If I talk about myself, my name is Sana Farooq, and when I wake up early in the morning, I pray namaz, and after praying the namaz, I just get myself ready to go to office. And as I reach office, I start working on my computer and my other stuff of my work is audit. So I just see how many bills are there, store bills and other things, and I start working on it. In the office time, when there is a break, I go to for lunch and namaz prayer. And after that, when the time of office is off, I come back to my home. And I then pray the evening namaz, and I have the tea, and I cook the food. I take the dinner. I enjoy the time with my family. I also see the television. I use my mobile. I do the activities which I like stitching. Sometimes I stitch, sometimes I play with the kids. And after that, in the night time, I go to my bed. I just close my eyes, shut. You can also use the shut my eyes, shut down my eyes, or close my eyes, and I just sleep. It's a little daily routine of me. I just want some sentences of all of you to just introduce yourself in your daily routine. What do you do
एंड अगर आपको नहीं इंग्लिश में नहीं बोला जा रहा हो आप लोग उर्दू में बोल सकते हो, फिर मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस सबका बहाल हो। मोहम्मद जाहिद, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। इंट्रोड्यूस लाइक हाउ यू स्टार्ट अप योर डे एंड एंड अप योर डे। मोहम्मद जाहिद, जियाद, मोहम्मद जियाद, आर यू विद अस? मोहम्मद हेलो जियाद, जी मैम। अयाज अहमद, ओके अयाज अहमद, हम जरा जी जी। डेली रूटीन पे बात कर रहे थे। मैंने डेली रूटीन की एग्जांपल दी कि आप किस तरह से दिन स्टार्ट करते हो, किस तरह से हेलो एक्टिविटीज करते हैं। आर यू देयर अयाज हेलो अहमद? हेलो। जी, हेलो अयाज अहमद, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी मैम, आवाज कट रही है थोड़ी। जी। आप अपने घर पहुंच गए हैं? नहीं पहुंचाना, अभी रास्ते में वो गाड़ी खराब हो गई थी, अभी बाइक पे जा रहा हूँ। अब आप किस तरह से क्लास मतलब होगी, जी। आप तो मुश्किल में फंसे हुए। हेलो चले आप सुन लें मतलब अभी तो, या फिर इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप अपनी डेली लाइफ कैसे स्टार्ट मैम, करते हो रूटीन। अयाज मैं अहमद, सुबह आजकल जो रूटीन है, सुबह उठ के कोई शहर जाना होता है थोड़ा इंग्लिश या में, अपनी। थोड़ा सा इंग्लिश बोलें, थोड़ा सा इंग्लिश बोलें, जहाँ मसला होगा उर्दू में आ जाइएगा, फिर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी। एवरी मॉर्निंग ओके। डेली माय डेली रूटीन इज एवरी मॉर्निंग आई गो टू सिटी फॉर ओके, परचेज एंड you go to city for आफ्टर your work, for your work I go to city for my work. I go to city for my work, Okay, and from back city I go to in our uh, 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 आप उर्दू में बोल सकते land 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 work, जिम्मेदारा मतलब हैं। ओके, खेती बाड़ी का फील्ड वर्क, फील्ड वर्क, फील्ड वर्क। एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर, you are having the work something related to agriculture. फील्ड वर्क। Okay, you go to your land, you go to your agricultural land, then जी जी। देन okay, फिर बच्चों को स्कूल से वापस लेना होता है। I take my children from school, I take my children from school. I take my children from school। वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड एफर्ट है आज अहमद। अब अपना जी मोबाइल, जी। आप अपना म्यूट कर दे माइक, अब मैं दूसरे से पूछती हूँ। मिस जी साइका जी। वहीद, मिस साइका वहीद, आर यू विद अस? मिस साइका, पता नहीं स्टूडेंट्स फॉरन क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे। मोहम्मद, मिस मोहम्मद याद। ओके मोहम्मद जियाद, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, किस तरह से रूटीन स्टार्ट होती है आपकी? जी मिस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Uh, uh, I get early in the morning for prayer. After returning from mosque, I take the breakfast and then get ready for the job. So I travel from my home about 30 kilometers to the office, and after that, the whole day to take the to do the office activity. I return to the home about 7 o'clock at evening. So after that, I do homework with my one daughter, and after that, to take the dinner, I get I do the prayer and then get to the bed and take a rest for next morning. Thank you. That's really nice, you are having a good speaking power, you will learn soon. मोहम्मद जियाद, well done. Thank you, miss. Thank you, miss. Mr. Amin, can you introduce how you start up your day, how you end up your day, what are your activities, Mr. Amin Patabishi? Mr. Hello, Amin, sorry, can you repeat the question, please? I am saying just tell me your routine, how you start up your day. You wake up, you take the food, you go to office. Just give me a little intro. Yeah, thank you so much. My routine every day when I wake up, I have to take a time to pray. After pray, I can take my breakfast. After my breakfast,
I usually have time to look my agenda to see a day planning. After that, I go to the office, and after a few office every day, I must have a evaluation of the day, preparing also the next day. Those are the way I usually do as a routine in my professional life. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you, Mr. Armin. Yeah. Miss Tyra is with us. Miss Tyra on mobile means WhatsApp. She's having some internet issue. Miss Tyra, can you give me an introduction about your daily routine? हम daily routine पूछ रहे हैं सबसे. Miss Tyra, उनका कोई इंटरनेट का इशू है. Okay, leave. Miss Saika, are you with us? Miss Saika? Yes, Okay, I'm here. give your introduction. How you start up your day and what are the activities? Yes. First of all, I start my day with the morning walk because it's very important for me. I'm a nature lover and I I'm a nature lover and I very happy to see a morning walk and see a sun. And yes, and then morning walk I go to office 8:30. Okay, then ऑफिस जाने के बाद फिर Mm, and then I go back no 5:30. no, when you go to your office you should say I start working on my daily routine task. Yes. Actually, I'm a crypto trader. I start my day with the trading. ओके, क्रिप्टो ट्रेडिंग या जो भी है कुछ तो करती है ना काम, वो बताए थोड़ा सा. Yeah, yeah. Yes. ओके. Actually, my basically fields are online work. ओके, वर्क फ्रॉम होम And या फ्रीलांसिंग. online work means office works and crypto trading. In office work, I work on different projects, just like a data entry and lead generations. दैट्स नाइस. And crypto trading. In crypto trading, I'm expert in analysis, just like a sport resistance and other things, which important for trading. दिस इज सो गुड. Yeah. And do you cook food in the home for your family and for you? Actually, I love baking. You love baking. Okay, Yeah. what do you Every love most Sunday. in baking? Cakes or Yeah. some other things? Yes. Actually, I work. Actually, I studied Kotham, and you know that Kotham is the best place for hotel management, just like a baking. Okay. Just like a baking हो गया उसमें baking, fast food, and Chinese food, each and everything. Okay, you really like But I love baking. baking. You love baking, but you like all kind of food, Chinese, Italian, traditional, everything. You like Yeah, a foodie person. You like means foodie. Okay, exactly. this is nice. Okay, Yes. you can mute your mobile. We are going to some lecture. Please speak again. I'm saying you can mute your mobile. I have listened your routine work. Now we are coming to our lecture. Okay, sure. Sir, screen, sir Amir. Yes, Miss Sana. अच्छा, स्क्रीन शेयर की हुई है ना, मैं जरा लेक्चर Yes, we are seeing your screen. Yeah, can you see everyone? Yeah, please make it full. Okay, it's fine. सर आपको नजर आ रहा है ना मेरी स्क्रीन ये? Yeah, Yes. we are seeing your screen. Miss Okay, everyone. Now our lecture हम थोड़ा सा we will start with some vocabulary words. Vocabulary words आपकी ना इंग्लिश को enhance करते हैं. आपको जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे, आपके पास जितना ज्यादा जखीरा होगा वर्ड्स का. मोहम्मद जियाद के पास कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद जियाद, यस, यू आर रेजिंग योर हैंड. मोहम्मद जियाद, जी मोहम्मद I जियाद have बोले. no. Sorry,
आपने वो हैंड रेस किया था, मुझे लगा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके फाइन। ओके तो हम वोकेबलरी पे आ जाते हैं। वोकेबलरी आप लोग अपने पास जस्ट टेक आउट अ पेंसिल और अ पेन और अ नोटबुक ना। तो हम जो है ना पेंसिल और नोटबुक से अगर मैं जो मतलब समझाती हूँ, इफ यू वांट टू राइट अप, वैसे तो ये आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, पर अगर कुछ और मतलब अगर जो है करना है तो आप लिख सकते हैं। ओके द फर्स्ट वर्ड इज डेफरेंस। Deference means respect and esteem due to an elder or superior. When you respect someone, you can use the word respect, you can use the word deference. And in the bracket, it is written noun. N means noun. It's a noun. Noun is name, name of anything. Means it's an act of respecting. Sentence is he showed deference to his mentor by listening carefully to his advice. उसने शो करा एहतराम, इज्जत अपने उस्ताद के लिए, उसकी एडवाइस को अच्छी तरीके से सुना। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटेंसेस डिफरेंट बनाएंगे। रेफरेंस ये पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ कोर्स है, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि सबकी स्पीकिंग बेहतर हो और आपके वर्ड्स इंक्रीज हो। सो deference, like I show deference to my elders because they are superior to us and they guide us very well. मैं डेफरेंस शो करती हूँ, एहतराम करती हूँ। ठीक है, तो मिस साइका आपके पास कोई सेंटेंस है डेफरेंस से रिलेटेड? कैन यू शेयर मिस साइका सम सेंटेंस? Difference. Just डेफरेंस wait a minute. आप उर्दू And में भी बोल सकती हैं, अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूंगी, साथ साथ करेंगे। and it means respect. या Difference means. ओके रिस्पेक्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा इस्लाम हमें हर किसी के साथ इज्जत से बात करने और एहतराम का हुक्म देता है। वेरी नाइस। आवर रिलीजन इस्लाम टीचेस अस द लेसन ऑफ डेफरेंस। जी। ठीक है, ये आप बनाए बोले कि आर इस्लामिक प्रिंसिपल या आर रिलीजन इस्लाम टीचेस अस द जी। लेसन ऑफ डेफरेंस। बोले आप, स्पीक अप। हाँ, इस्लामिक हाँ इस्लामिक रिलीजन टीचर्स टू डिफरेंस। आगे क्या था? द लेसन ऑफ डेफरेंस, डेफरेंस का सबक है, एहतराम का सबक दे रहा है ना। जी। इस्लामिक रिलीजन टीचर्स द डिफरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ, डेफरेंस टू अस मतलब लेसन ऑफ डेफरेंस टू अस। ओके। चलें, वेरी नाइस। आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं हल्के हल्के और इम्प्रूव होता जाएगा, बट हमने कोशिश करते रहना है तो हम सीख जाएंगे। डिनाइग्रेट, सेकेंड वर्ड इज डिनाइग्रेट, टू क्रिटिसाइज अनफेयरली, टू डिस्पैरेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्रिटिसाइज करें बिला वजह। सेंटेंस के द पॉलिटिशियंस अपोनेंट्स अटेम्प्टेड टू डिनाइग्रेट हिज अचीवमेंट्स। जो पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिशियन सियासी रहनुमाओं के जो मुखालिफ होते हैं, बिला वजह जो है उनकी जो अच्छी काम चीजें भी होती है उन्हें भी डिनाइग्रेट मतलब उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं अनफेयरली। लाइक वी शुड नॉट डिनाइग्रेट एनी वन। मतलब क्रिटिसाइज एक तो होता है, क्रिटिसिज्म क्या होता है आपका, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव क्या होता है कि आप किसी के भले के लिए बोलो ताकि उसके साथ उसकी जो है चीजें अच्छी हो जाए। बट नेगेटिव क्या होता है, बिला वजह आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई रीजन भी नहीं है। मिस्टर अरमीन मतलब ऋषि, कैन यू जस्ट गिव अ सेंटेंस ऑफ द सेकंड वर्ड डिनाइग्रेट? मिस्टर अरमीन। Yeah, you मिस्टर say अरमीन, a sentence with what word? you should make a sentence of denigrate. Denigrate is a word that to criticize someone unfairly. The, you say the fourth one, or I saw Second word is difference. denigrate. Denigrate. You say can I tell you the one sentence by using Yeah, I am denigrate? using the word denigrate is the thing to criticize someone unfairly. बिला वजह मतलब to just criticize, like we should not denigrate anyone. So because Okay. it's not good to just give negative remarks to anyone. So can you make a sentence of denigrate? Yes, yes, yes. I can, I can. Sorry, I can use. Okay, use a For sentence. example, yeah. Okay. For example, the word
what is going between Russia and Ukraine is um is denigrating the world policy. For example, Okay, okay, okay. yeah. The third word is okay. I mean, thank you. The third word is discern. Discern. To perceive or recognize something. Sentence is she could barely discern the details of the painting from across the room. She could barely discern the details of the painting means she cannot recognize it. She cannot identify it. मतलब उसको याद नहीं आ रहा. She cannot discern it. हम यूज कर सकते हैं like मैंने उसको देखा उस बंदे को like मैंने एक बंदे को देखा. I have seen a person. तो आपने बोला यार उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे. मैंने कहा I couldn't discern him. मैंने उसे देखा तो था पर मुझे याद नहीं उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे. तो डिसर्न मतलब मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, रिकग्नाइज नहीं कर पा रही. तो आप डिसर्न भी यूज कर सकते हैं. मोहम्मद जियाद आपको कुछ बोलना है. डिसर्न को कोई सेंटेंस बोलेंगे आप. मोहम्मद जियाद, मोहम्मद जियाद डिसर्न का कोई सेंटेंस बनाए. ओके. अयाज अहमद, आर यू विद अस? अयाज अहमद, अयाज अहमद आप लेक्चर सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ. घर पहुंच गए आप? मतलब अब आप बात कर सकते हैं हम. ऐसे में ये आवाज आ रही होगी आपको. अभी तक आप फंसे में. अब मैं डिसर्न पे थे. हम डिसर्न का कोई सेंटेंस बनाएंगे आप कि आप सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे मतलब कोई चीज ना. डिसर्न. चलिए ठीक है आप सुने. आज आपको शायद मुश्किल भी हो रहा है, आप रास्ते में खड़े हैं. आप पर सुने लेक्चर को. ठीक है. ओके थैंक यू. ओके ओके वी हम नेक्स्ट सेंटेंस पे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. डिसरिगार्ड. डिसरिगार्ड तो सिंपल ये है कि आप जो है इग्नोर कर दो, अटेंशन ना दो, इज्जत ना करो, ख्याल ना करो. ही चोज टू डिसरिगार्ड द वार्निंग्स एंड स्काई इन द डेंजरस एरिया. ही चोज टू डिसरिगार्ड द वार्निंग. डिसरिगार्ड मतलब उसने वार्निंग्स को, वार्निंग दी गई उसको पर उसने जो है वार्निंग को नहीं माना और डिसरिगार्ड कर दिया मतलब छोड़ दिया कि भाई मैं नहीं रिस्पेक्ट कर रहा, मतलब मैं मान ही नहीं रहा, मैं डिसओबे कर रहा हूँ. डिसरिगार्ड डिसओबे है. We should obey the rules, but there are many people who disregard the rules. Disregard मतलब कि disobey कर रहे हैं rules को. ठीक है. तो मोहम्मद अयाज अहमद आप बोलेंगे डिसरिगार्ड पे कोई सेंटेंस. अयाज अहमद, अयाज अहमद कैन यू लिसन मी? अयाज, जी अयाज जी अहमद मैम, जी आप जी सुन रहे मैम, हैं? अच्छा जी मैं सुन रहा हूँ. अच्छा. आज बोलने के लिए माजरत में. कोई कोई मसला नहीं. मोहम्मद जियाद, मोहम्मद जियाद जी आप सेंटेंस बोले Yes, ma'am. डिसरिगार्ड में. जी डिसरिगार्ड में सेंटेंस बोले कोई. मोहम्मद जियाद. Most of the people on the road when the drive, they are disregard the traffic signal. मोहम्मद जियाद डिसरिगार्ड का मतलब आप नहीं मान रहे किसी चीज को, रूल्स को. जैसे आप डिसरिगार्ड करो डिसओबे करो. मोहम्मद जियाद Okay, the कोई driver सेंटेंस are बनाए disregarding डिसरिगार्ड. the driver are disregarding the traffic rules. यू डिसरिगार्ड व्हाट? क्या डिसरिगार्ड करते हैं आप? The drivers are disregard the traffic rules. मुझे सही से क्लियर आपकी आवाज नहीं आई. डिसरिगार्ड. चले ठीक है. डिसोनेंस. द फिफ्थ वर्ड इज डिसोनेंस. लैक ऑफ हार्मनी अमंग म्यूजिकल नोट्स और क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज. Fifth is dissonance. Lack of harmony among musical notes or clash of conflicting ideas. The dissonance in the music created a feeling of tension मैम and शीट unease. नजर नहीं आ रही है. शीट नजर नहीं आ रही है आपको? मैम आपने जो, हाँ अब ठीक है. ओके हाँ ओके. यहाँ तक डिसरिगार्ड हो गई है. इससे थोड़ा आगे करें. यस फिफ्थ अब है ठीक है. डिसोनेंस. हाँ डिसोनेंस पे हम. यस. डिसोनेंस. ठीक है. डिसोनेंस क्या है कि आप कोई भी टेंशन सी, कोई भी डिस्टरबेंस. डिसोनेंस जो है डिस्टरबेंस है आपकी ना, कि म्यूजिक में जी. डिस्टरबेंस की वजह से एक टेंशन और अनईज
फैल गई. Lack of harmony among musical notes or clash of conflicting ideas. Sixth one is docile, ready to accept control or instruction, submissive. The docile puppy was easy to train and quickly learn new commands. Ready to accept मतलब कोई बंदा फौरन से एक्सेप्ट कर ले चीजों को, बंदा या कोई वो भी मतलब आपसे कोई बोलो बेटा मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू इंस्ट्रक्शन एंड यू फॉलो इट. यू आर क्वाइट डोसाइल. डोसाइल मतलब कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो फौरन से. मिस साइका कोई बताएं सेंटेंस डोसाइल का. मैम डिसाइड का तो मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे ऊपर जो डिसोनेंस था ना, वो मुझे ठीक से समझ नहीं आया. अच्छा मैं डिसोनेंस का भी आपको बता देती हूँ. आप पहले डोसाइल का सेंटेंस बनाएं. डिसाइड का आप प्लीज मुझे दोबारा बताएं, फिर मैं इसका सेंटेंस बनाती हूँ. डिसाइड क्या था एग्जैक्टली इसका मीनिंग? एक्चुअली मैं डिसोनेंस पे थी ना, तो मैं इसको समझ नहीं सके. किधर थी आप? आप मुझे डिसाइड का एक बार दोबारा बताएं कि ये है क्या. एक्चुअली डोसाइल. मैं डिसोनेंस पे थी ना, तो मैंने इस पे ओके कोई ध्यान मसला दिया. नहीं, कोई मसला नहीं. जी जी. डोसाइल जो है आपका कि आप फौरन से जो है बात मान लो. रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मान लो, सबमिसिव मतलब भी फौरन मान ले. मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी, आप फौरन फॉलो करना शुरू कर दो. यू आर क्वाइट डोसाइल, आपने फौरन मेरी बात मान ली. तो वो है डोसाइल ना. I will always decide the rules and regulations. ये हो सकता है. You are docile. You are docile with the rules and regulations. They Yes. like you accept. Okay, fine, this is good. अच्छा, Yes. डिसोनेंस जो है वो ये था कि इख्तिलाफ, आप इख्तिलाफ करो. लैक ऑफ हार्मनी अमंग म्यूजिकल नोट्स और क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज. मतलब आपका कोई एक, आप किसी चीज को अलग सोचते हो, मैं किसी चीज पे अलग सोचती हूँ. इन्होंने जी. म्यूजिक का वर्ड दिया है. म्यूजिक मतलब द डिसोनेंस इन द म्यूजिक क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ टेंशन एंड अनईज. आप कोई और भी सेंटेंस बना सकते हो, लाइक किसी की चीज के बारे में भी आपकी कोई अलग राय है, मेरी अलग राय है. कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, एक ही चीज को जी. आपका आइडिया अलग है, मेरा अलग, इख्तिलाफ करे तो वो डिसोनेंस हो गया. So the dissonance between the discussion of you and me creating unease. मतलब सिचुएशन को बहुत अनईजी कर रहा है आपका जो मेरा इख्तिलाफ जो है. सही है, सही है मिस साइका. ठीक है, समझ गई साइका? हेलो. यस मैम, अब समझ आ गई है. ओके दैट्स गुड. आप लोग बीच में से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. सेवेंथ वन इज एम्बेलिश. To make Yes. something more attractive by adding decorative details to enhance the story with exaggerated details. Exaggerated किसे कहते हैं? चीजों को बहुत ज्यादा exaggerate कर देना, बढ़ा चढ़ा देना. ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा देना मतलब चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल्स दे देना, मतलब बहुत खूबसूरत बनाना. अब किसी चीज को अट्रैक्टिव खूबसूरत कैसे बनाते हो? उसमें बहुत डिटेलिंग ऐड करके, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के, तो उसको आप एम्बेलिश कर सकते हैं. शी एम्बेलिश्ड द टेल ऑफ हर वेकेशन विद कलरफुल एंड सी डॉट्स एंड एग्जैजुरेशंस. मतलब उसने अपना कोई वेकेशन का उसने जो तैयारी व्यारी करी बड़ी डिटेलिंग के साथ, एग्जैजुरेशन के साथ की. एम्बेलिश मतलब किसी चीज को भी सजाना बहुत तरीके से. लाइक आई एम्बेलिश्ड माय बर्थडे सेलिब्रेशन विथ so many ribbons, balloons and many creative ideas. ठीक है, Yes. एम्बेलिश हो गया. Now emulate. Eighth one is emulate, to match or surpass a personal achievement by imitation. He tried to emulate his father's success in the business world. अच्छा जी, emulate Yes. का क्या मतलब हो गया? Emulate means इसका मतलब है मैच और मीन्स someone achievements. मतलब आप मैच करने की कोशिश करो. हम कहते हैं ना कि यार आप जो है, मैं अपने फादर की तरह लगती हूँ, मैं अपनी मदर की तरह लगती हूँ. तशबीह मीन्स तशबीह देना किसी चीज से. मोहम्मद जियाद, अपना मोबाइल, आपका माइक शायद अनम्यूट हो गया. मोहम्मद जियाद, म्यूट योर मोबाइल. आपकी कन्वर्सेशन डिस्टर्ब हो रही है क्लास में. तो जो एमुलेट है मतलब तकलीफ मतलब आप कॉपी कर रहे हो, मैच कर रहे हो. कहते हैं ना कि आई वुड लाइक टू गेट एमुलेटेड लाइक माय फादर. मतलब मेरे फादर की जैसे सक्सेस है तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी उसी तरह सक्सेस हासिल कर लूँ. आई वुड लाइक टू एमुलेट माई सेल्फ एज लाइक माई फादर. मैं अपने फादर की तरह बस बनना चाहता हूँ. मैच करना, सरपास करना. ठीक है. Yes. एनिग्मा, a person or thing that is mysterious or difficult to understand. Sentence say the disappearance of the ancient civilization remain an enigma to historians. Enigma
कि क्या ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि एक चीज जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, दैट इज Yes. मिस्टीरियस फॉर इट्स आर्ट, मतलब द डिसअपियरेंस ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन रिमेन एन एनिग्मा टू द हिस्टोरियंस। जो बिल्कुल वो एंशियंट सिविलाइजेशन जो एकदम पुरानी जो रसूमात थी, जो पुरानी जो चीजें थी वो खत्म हो गई, वो एनिग्मा हो गई, मतलब लोगों को हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया। तो इसको ये कहा Okay. जाएगा एनिग्मा। ठीक है। मिस्टर अमीन मुतवशी वो है या नहीं है? है हमारे साथ में, ठीक। ओके, दिस इज नाइस। 10th वन इज योर एसोटेरिक। अच्छा, मैं कुछ में सेंटेंसेस पूछ रही हूँ, कुछ में नहीं, क्योंकि फिर काफी सारे वर्ड्स है, मैं चाह रही हूँ कवर अप करा दूं ना, वरना अगर ज्यादा होगा तो फिर लंबा हो जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे कंप्लीट ना। मैं 25 वर्ड्स दिए। ओके स्टूडेंट्स, एसोटेरिक, intended for or likely to be understood only by a small number of people with specialized knowledge. Esoteric. The professor lecture on quantum mechanics was too historic for more students. एस्टोरिक होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ टेक्निकल लोगों को समझ आए। लाइक अब जो इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है वो इंजीनियर्स को समझ आएगी, लॉ Miss की Sana, लैंग्वेज लॉ। Miss Sana, जी जी sorry सर। to interrupt you. Uh, can we take some opinion of participants, how we teach them about these words, and सर सारे I बच्चे think आपने देखा होगा, it's बच्चे वो I कर रहे हैं, want to make इन्वॉल्व हो it रहे हैं। some I make to some make it some interactive one. सर आप देखिए, द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, सब जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो We have some kind of icebreaker. You have some kind of icebreaker. सर एक्चुअली सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने की। एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं और आज फर्स्ट Okay. सेशन भी है, ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, तो हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों को कवर करें। Okay, it's fine. It's fine. It's fine. I just want to say that we have some kind of icebreaker in between the in this session, so make it more interactive. As okay, I just give an example. Can any person tell us about two truths and a lie? Yeah, do you understand me? Understand my what I say? सर आमिर आप क्या बोल रहे हैं? Participant, I want to give them a icebreaker activity. सर I एक्टिविटी I said to the participants, they tell us two truth and a lie about themselves, and we ask every person what's the lie between in these statements. ओके स्टूडेंट, सर कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा पढ़ते पढ़ते बीच में कोई एक्टिविटी हम कर लेते हैं, ताकि जो है बोर्डम ना हो, आप लोग एंजॉय भी करें लेक्चर को। तो कह रहे हैं कि आप लोग कोई अपने बारे में एक सच बोले एक झूठ बोले, तो बाकी वाले जो है वो ग्रुप में इंटरेक्ट करेंगे कि यार हाँ ये बात बंदा सही बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो मिस साइका आपको अपने बारे में Any कुछ simple sentence, they can make any simple हाँ, sentence about. एक सिंपल सेंटेंस अबाउट योर ट्रुथ अबाउट योर लाई, फिर पीपल विल गेस कि यार ये वाकई सच बोल रही है या नहीं, मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी सी है। मिस साइका Yes. स्पीक अप। The two truths. फर्स्ट ऑफ ऑल, Please listen to me. Two yes, truths and a lie. yeah. First of all, I'm not foodie, and second, Okay. I'm hardworking. Okay. Both are opposite. ओके Okay. So, Yeah. Mr. Zed, what's the lie in these
What's the lie, Miss Saika? Say three sentences or three things about her. Two are truth and one is lie. Actually, Mr. sir, net connection. Mr. Orman, बहुत slow. do you listen us? Ayaz, Arman, do you listen us? Can you listen? Anyone listen? मोहम्मद रियाज, मिस्टर अरमिन, मिस्टर अयाज, आप बताएं अपने बारे में, कोई लाए बताएं, कोई ट्रुथ बताएं इंग्लिश में. Yes, Miss Saika, I have to please say tell what again. Tell again. Muhammad Ziad is here. No, I'm not foodie and Okay. I'm a hardworking person. Okay. And third one, you say you are not foodie, you are a hardworking, and third one is Third, I want to be a great trader. you want to be a great trader. And in Yeah. between these three sentences, one is lie and two are truth. I'm not foodie. I'm not foodie. It's totally lying. Okay, yeah. Okay. Okay, you tell myself. Okay, Mr. Jad, can you tell us about you speak three simple sentences about yourself. Hello, sir. So I have to say about myself three sentences. Two is truth and one is lie. So the first two, which are truth about myself, I am a fast learner and I am a hardworking person. And the lie is No, you don't tell us a lie. You just tell speak three sentences about yourself. We guess that. Which is the lie? Okay, you will guess that. So I have done the job wrong this time. So what I can do now? So okay, I have to start again. So I do manage the time very well. I go to the office on time, and third one is I respect my teachers or I respect my seniors. So, Mr. Ayaz, which was lie? Mr. Ziad, Mr. Ayaz. सर मिस्टर अयाज जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए, इसलिए वो इंटरेक्ट नहीं कर Okay. सकते. Okay, Miss Saika. You listen Yes, sir. Mr. Ziad? No, Okay. sir. Sana, you please carry on. I just mute my mic. Okay, sir. Okay. Let's continue the lecture, sir. Just के आइस ब्रेकर सब जागते रहे, तो एक एक्टिविटी थी, वो एक्टिविटीज हम करते रहेंगे कि अपने लेक्चर को हम थोड़ा इंटरेक्टिव करें. हम कौन से वर्ड पे थे गाइस? एसोटेरिक पे थे हम. एसोटेरिक वो टेक्निकल लैंग्वेज जो सिर्फ जो है टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं. 11th one is eulogy. A speech or piece of writing that praises someone highly, typically someone who has just died. The eulogy delivered at the funeral celebrated the remarkable life and contribution of the deceased. Deceased कहते हैं जो बंदा मर चुका हो, उसके लिए कहा जाता है. और eulogy जो आप कहते हैं ना, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना.
स्पेशली जब वो बंदा इस दुनिया में ना रहे। इसका एक एग्जैक्ट वर्ड जो है वो उर्दू में होता है, मतलब आप जब वो बंदा चला जाता है तो फिर उसके बारे में आप जो है कसीदा बोलते हैं, ठीक है। यू जस्ट गिव कि इसने ये किया, उसकी ग्रेट एक्टिविटीज बताते हैं लाइफ में। The 12th one is exacerbate, exacerbate to make a problem or situation worse. Exacerbate है कि यार पहले ही मसला है और चीज को मसला वाली बना दो और चीज को खराब कर दो। To make the situation more worse, to make the situation more bad. Sentence: his refusal to acknowledge the issue only served to exacerbate the conflict. मतलब कि उसने कहा कि मैं इशू को एड्रेस नहीं करूंगा, मैं इशू को नहीं सॉल्व करूंगा, तो उस बात से और ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट मसला जो है वो और ज्यादा एक्सेसरबेट हो गया, खराब हो गया। 13th is your exemplary, serving as a desirable model representing the best of its kind. Exemplary मतलब मिसाल में बेहतरीन, to be the best in giving the example। वो कहते हैं ये तो मेरी एग्जाम्पल है, मेरी आइडियल हो गया। हर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस एट वर्क अर्नड एट द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड। उसकी एग्जाम्पलरी, उसकी मिसाल कौन परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी अच्छी थी कि उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल गया। एग्जाम्पलरी, साइका वहीद, एग्जाम्पलरी का कोई Yes, सेंटेंस ma'am. बनाए आप, एग्जाम्पलरी का कोई सेंटेंस बनाए। Exemplary performance work earned employee in the world. Exemplary. मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बहुत इतनी अच्छी करी कि मिसाल देनी पड़ गई। मतलब मिसाल कौन कहते हैं ना, इसका काम ऐसा है कि मिसाल देते हैं इसकी, एग्जाम्पलरी। Cristiano Ronaldo is an exemplary player in football. वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो Thank इज you. exemplary football player, really good। 14th is Thank you. expedient, 14th is expedient, convenient and practical although possibly improper or immoral। Using a Yeah. shortcut was expedient, but it violated company policy। Expedient क्या है कि आसान है, सब कुछ है, but सही नहीं है, तरीके से सही नहीं है। Like if you are using the Yes. shortcut, it's good. You can do that well in a shorter time, and you can, but it violates the company policy. Company policy does not allow it. Like we are taking the shortcut, it fasten our speed. It is a small route to somewhere. It is expedient, but it violates the rule or policy. Okay, the fifth word is, we will also listen some pronunciation of this. This is something. Finesse. Finesse. Listen. Can you listen? Finesse. Finesse. Yes. Yes, finesse. Here we pronounce it like finesse. A skillful handling of a situation or delicate task to handle with subtlety and skill. She handled the negotiation with great finesse, securing a favorable deal for her company। Yes. ग्रेट फिनेस, उसने बड़ी तरीके से, बड़ी स्किल के साथ उस चीज को हैंडल किया और अपनी कंपनी के लिए एक अच्छी डील लेकर आ गई। Yes. ठीक है, Yeah. मतलब टू हैंडल समथिंग वेरी वेल। ठीक है, मैम मैं इसका एक जुमला बनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बनाए आप। Okay. A receptionist finesse the critical situation. ओके, फिनेस उसने बड़ी स्किलफुली से हैंडल किया। अच्छा, इसे हम Yes. नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी। क्या Okay. आपने यहाँ पे जो किया ना कि आर रिसेप्शनिस्ट, क्या आपने बोला? A receptionist finesse the critical situation. फिनेस आपने यहाँ पे से वर्ब की तरह यूज किया कि उसने Yeah. फिनेस की तरह, मतलब स्किल तरीके से किया। अब हम अगर Exactly. नाउन, हाँ ठीक है, वर्ब की तरह भी हो सकता है, नाउन की तरह हम इसे कैसे यूज करेंगे कि हर स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर इज सो फिनेस। मतलब यहाँ पे मैंने नाउन की तरह Yeah. यूज कर दिया कि बिल्कुल फिनेस स्टाइल है, जी। उसका स्किलफुल स्टाइल है। और आपने कैसे यूज किया था? रिसेप्शनिस्ट फिनेस वर्क। फिनेस मतलब स्किलफुली Yeah. हैंडल करती है। कुछ देखिए जी। आपको लिखने में आ गया, एक्सपीरियंट आपका एडजेक्टिव है, फिनेस आपका जी। नाउन और वर्ब है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को पता चले आप लोग पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, Exactly. Yes, ma'am. आर यू ऑल एंजॉइंग द लेक्चर? मतलब मजा आ रहा है आप लोगों को क्लास में? लग रहा है कुछ सीखने को मिलेगा? 100%.
ओके मोहम्मद जियाद, आप भी बताएं थोड़ा सा, आर यू कंसीडरिंग इट वेल? Miss Sanat, uh, are you concluding the session now? नहीं नहीं सर, वैसे ही बीच में मैंने पूछे, नहीं कंक्लूडिंग नहीं कर रही। Okay, we have 1 hour and 22 minutes now. या वो सर बीच के शुरू के 20-30 मिनट्स तो आए नहीं ना बच्चे, तो इसलिए 10 बजे तक लेके चलते हैं इसको। Okay, okay, that's fine. ओके मोहम्मद जियाद, आर यू विद अस? मोहम्मद जियाद, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं एकदम मोहम्मद जियाद। Okay, fledgling. 16th is fledgling, a young or inexperienced person. Fledgling. Fledgling. D is silent. Fledgling. Okay. A young or inexperienced person just beginning. The fledgling artist struggled to find his unique style in the competitive world of the art. जो फ्लैगलिंग आर्टिस्ट है, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस, ना तजुर्बेकार, जो इसने अभी स्टार्टअप किया है, उसने स्ट्रगल किया कि वो एक अच्छे स्टाइल में इस वर्ल्ड के मतलब आर्ट ऑफ वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करे। फ्लैगलिंग में जो भी बंदा इनएक्सपीरियंस्ड है, स्टार्टअप किया है, यंग है, उसके लिए हम फ्लैगलिंग चूज करेंगे। लाइक द फ्लैगलिंग ब्यूटिशियन स्टार्टअप इज वर्क with the basic style of beauty tips. Okay. मिस साइका वहीद, आप फ्लैगलिंग का कोई सेंटेंस Yes. बनाएगी? बोले बोले। Fledgling means unexperienced या just beginning. हाँ, जस्ट Uh, लाइक दैट। I started a new project. ये नहीं बनता कि मैंने अपना न्यू काम। I'm fledgling a new office. क्या मतलब कहना चाह रही है, उर्दू में बताइएगा। इसका मतलब है कि मैंने अपना न्यू जस्ट बिगनिंग के मैंने अपने न्यू ऑफिस में एज अ बिगनर वर्क किया। नहीं, एज अ बिगनर वर्क नहीं किया, मतलब कि आप फ्लैजलिंग मतलब आप स्टार्टअप हैं, आप मतलब बिल्कुल न्यू है, मतलब न्यू भी है, ठीक है, तो आपके लिए वो कहा जा रहा है जिसने स्टार्टअप बस वर्क किया है। द फ्लैजलिंग आर्टिस्ट, द फ्लैजलिंग, आई एम अ फ्लैजलिंग आर्टिस्ट, लाइक आई एम अ फ्लैजलिंग पर्सन, ये बोलेंगे, कोई गलत वर्ड नहीं है ये, बस एक तरीका नहीं बता नहीं, रहे हैं। हाँ, नया वर्ड अच्छी बंदा बात है। है ना, क्योंकि ये सारे हाँ वर्ड एक्चुअली मेरे लिए बहुत न्यू है। मिस, मैंने ना हाई क्लास वोकेबलरी सिलेक्ट की है, लेकिन नॉर्मली आप इन एक्सपीरियंस चूज कर सकती हैं। आप जो है यंग, आप बिल्कुल न्यू भी स्टार्ट कर सकती हैं, जो आप रोजमर्रा में बोल रहे हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली, ये वर्ड वही आप वर्ड्स ऐड हैं जो डेली रूटीन में यूज होते हैं। डेली रूटीन में जो होते हैं, पर उसके मैंने बड़े हाई क्लास और एडवांस किए हैं, ताकि आप लोग की वोकेबलरी भी बढ़े और आप लोग इजी टू एडवांस में जाएं। इस जी वजह से मैंने इंशाल्लाह। चेकअप किया है। ये मतलब ना, ये आपकी, आप लोग अगर आप लोग को वर्ड्स भी यूज करें, लाइक आपको पैराग्राफ लिख रहे हो ना, उसमें आप बार बार इन एक्सपीरियंस नहीं यूज करोगे, आप कभी न्यू भी करो, कभी फ्लेजलिंग करो, तो ये आपकी वोकेबलरी को भी एनहेंस करेंगे, आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग को भी बढ़ाएंगे। जी दैट्स बिल्कुल, इसलिए मैं इसके नोट्स बना रही हूँ साथ साथ। जी जी, मैं आपको ये पीडीएफ भी इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर करूंगी, जी ठीक जी, है, थैंक यू सो आप लोग मच। नोट भी बनाए, आप लोग के लिए और अच्छा है। ओके, मिस्टर जियाद आप हैं हमारे साथ? मिस्टर जियाद, मिस्टर जियाद स्पीक अप, मिस्टर जियाद, मिस्टर जियाद is not saying anything. Okay, Mr. Armin, Mr. Armin, are you with us? Mr. Armin, Mr. Armin, Yes. yes, Here Mr. Armin, make a sentence of fledgling. yeah, let me with fledgling. Yeah, Yes, okay. fledgling. D is silent, fledgling. Yeah. I say I met a fledgling people who was not able to handle a good project. Okay, you met a fledgling person who cannot handle the project well because he is Yeah, inexperienced. Very nice, Armin. Be a yeah, part of thank the conversation.
17 is fluctuate. Fluctuate is basically to change continually, to move up and down. Mean the things are fluctuating. The the like the political situation in Pakistan is fluctuating daily, Fluctuate day by day. day by day, daily, whatever. Stock Yeah. prices tend to fluctuate. आपकी जो आप क्या करती हैं मिस, आपने क्या बताया? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की Yeah. फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है, वेरी करती हैं मार्केट कंडीशंस Yeah. पे. 18 is Exactly. your Fluctuate. Yes. एक्चुअली जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो विद इन सेकंड फ्लक्चुएट भी कर जाती है. हमें नहीं पता होता कि अब इसने अप जाना है, कब डाउन जाना है. It's depend on just like a political issues, each and everything. Totally या economy depend on it. वेरी नाइस. इस तरह आप लोग इंग्लिश ट्राई करेंगे. आप अब इसकी हम प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे 18 वर्ड की. जी. फ्लूक, आप इसे फ्लूक बोलेंगे, ठीक है? ओ समझे बीच में, यू Look, नहीं, ओ. फ्लूक, look, फ्लूक. Okay, a surprising chance occurrence, especially a favorable one. Miss Sana, Sentence is yes, sir. Miss Ruxana also join us. Oh, Miss Ruxana, warmly welcome to you. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम एक्चुअली सलाम. हमारी लाइट नहीं थी सुबह से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो अभी 9 बजे ही आई है. Okay, तो no issue. देखो Still we are having 40 minutes left. हम 10 o'clock ओके पे करेंगे इसको. आप पार्ट ओके बने. ओके. ओके. मिस रुखसाना, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ कि हम लोगों ने स्टार्टअप जो है अपने इंट्रोडक्शन से किया. आप तो कल थी क्लास में, तो इंट्रोडक्शन सबने दिया. उसके बाद हमने डेली रूटीन पूछी गई कि क्या एक्टिविटीज करते हैं, किस तरह से स्टार्टअप करते हैं. इंग्लिश में सबने बताया. ओके ये एक टेस्टर था ताकि लोगों को पता चल सके लोग कहाँ पे, किस लेवल पे खड़े हैं. हमने सबको बुलवाना है, सबको सिखाना है. तो जी और यहाँ पे अभी भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने सेंटेंसेस के थ्रू, कि हम वर्ड सिखा रहे हैं, बीच में लोग सेंटेंसेस बना रहे हैं, कहीं उर्दू में कहीं इंग्लिश में. हम उसको फिर कन्वर्ट करके उनको इंशाल्लाह एक अच्छी इंग्लिश की स्किल प्रोवाइड करेंगे. जी ये हमारी ग्रेट. पूरी कोशिश है. पर आप लोगों से यही सिर्फ एक वो है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, क्लास ज्वाइन करें टाइमली. इंशाल्लाह यू विल हैव गुड स्किल्स इनफ टू स्पीक अप, टू राइट अप, जो आपके प्रोफेशनल करियर में जरूर हेल्प आउट करेंगी. ओके. फ्लूक पे थे हम. 18th पॉइंट, अ सरप्राइजिंग चांस occurrence especially in a favorable one. Winning the lottery was a fluke. He had never expected such luck. Fluke मतलब सरप्राइज, सोचा भी नहीं था, हो गया. Winning the lottery was a fluke. He had never expected such luck. I got great results in my exam. It was a fluke for me. मेरे लिए fluke था ये, क्योंकि I did not work so hard, but I have got good results. So that's a fluke for me. ठीक है. The 19th one is frivolous, but हम थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे ताकि और अच्छा हो जाए. Frivolous, frivolous, frivolous. Okay. Frivolous is not having any serious purpose or value. Trivial, कोई चीज भी जो नॉमिनल सी हो, जिसके कोई इतनी वैल्यू ना हो, लाइक 2-4 रुपए की बात है, 5-10 रुपए की बात है, फ्रिवलस है. नॉमिनल है, नॉमिनल भी यूज कर सकते हैं, फ्रिवलस भी, माइन्यूट भी यूज कर सकते हैं, जिसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है. द कोर्ट डिसमिस द लॉ सूट कॉलिंग इट फ्रिवलस एंड विदाउट मेरिट. कोर्ट ने जो है उस केस को जो है डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया, कहा कि बड़ी छोटी सी बात है, विदाउट मेरिट, मेरिट पे बात नहीं है. Okay, the 20th word is garner. To gather or collect something, especially information or approval. Her research helped garner widespread support for the new policy. When you are garnering something, you are collecting something, especially you are collecting something for the approval of someone. Her research helped garner widespread support for the new policy. ओके मिस रुखसाना, कोई सेंटेंस बनाएंगी गार्डनर का, कि आपने कोई चीज जमा करी है, कोई आपने रिसर्च जमा करी है, कोई भी आपने चीज जमा करी है, ठीक है, कलेक्शन एनीथिंग, उसको आप गार्डनर भी यूज कर सकते हैं. मिस रुखसाना, जी जी जी. गार्डनर
गार्नर का कोई सेंटेंस बताए। गार्नर मतलब कुछ कलेक्शन करी है आपने। ओके। आई गार्नर We एनी ज्वेलरी, इस तरह से कुछ बनाए, कलेक्ट करा आपने कुछ। I garner the staff information for the final evaluation. Okay, you garner the staff information for the final evaluation of your project. Okay, fine, this is good. 21 is your idiosyncrasy। idiosyncrasy, इसको भी हम जरा Idiosyncrasy, Idiosyncrasy. यही वर्ड है ना? जी जी मिस, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी इसकी कराऊंगी, वेट करें। Idiosyncrasy. idiosyncrasy idiosyncrasy Idiosyncrasy. idiosyncrasy idio Idiosyncrasy. प्रोनाउंस करें मिस रुखसाना, idiosyncrasy। Idiosyncrasy. Very nice. A distinctive or peculiar feature or characteristics of a place or thing. One of his idiosyncrasies was always tapping his pen when he was thinking. सबसे जो पर्टिकुलर किसी की कोई जो आदत होती है, कह रहे हैं कि उसकी एक इडियोसिंक्रेसी इसकी क्या है कि वो पेन को बार बार टैप, वो बॉल पेन को बार बार बंद या खोलते नहीं है, ऑन ऑफ करते हैं बॉल पेन को। जी। मैंने वजह वो सोच रही होती है बार बार बॉल पेन को ऊपर नीचे करेगी। लाइक इडियोसिंक्रेसी इज अ गुड वर्ड। किसी की कोई ना कोई हैबिट होती है। माई इडियोसिंक्रेसी इज टू वियर द पीस ऑफ क्लॉथ इन माई आईज वाइल स्लीपिंग। ये मेरी इडियोसिंक्रेसी है, एक हैबिट है मेरी जो मैं करती हूँ नॉर्मली। ठीक है। जी। इम्यूटेबल, 22 वर्ड इज इम्यूटेबल, अनचेंजिंग ओवर टाइम और अनएबल टू बी चेंज्ड। मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, उसको कुछ भी कर लो चेंज नहीं हो रहा कोई भी चीज। द लॉ ऑफ द फिजिक्स आर कंसिडर्ड इम्यूटेबल एंड यूनिवर्सल। जो फिजिक्स के लॉज होते हैं वो तो इम्यूटेबल होते हैं, कोई चेंज ही नहीं आता उसमें ना। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री इज इम्यूटेबल। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चेंज ही नहीं होकर दे रही है, एंड इट इज गोइंग वर्स एंड वर्स, बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। इम्पेडिमेंट 23 हमारे खत्म हो रहे हैं वर्ड, माशाल्लाह हम 25 पे पहुंच गए, दिस इज गुड। 23rd इज इम्पेडिमेंट, अ हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग। इम्पेडिमेंट क्या है, किसी चीज में कोई रुकावट आ जाना। अ स्टॉप, अ हर्डल, एन ऑब्स्टेकल, ये सब जो मैं वर्ड यूज करती हूँ ना, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आपकी ये वोकेबलरी ही है, इसकी मोर सिमिलर वर्ड्स हैं। इम्पेडिमेंट कोई भी रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन किसी को काम करने में। His lack of formal education was seen as an impediment on his career advancement. उसका करियर क्यों नहीं एडवांस हो रहा, क्योंकि उसकी फॉर्मल एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, उसकी वजह से उसका जो करियर एडवांस नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, रुकावट बन गई, क्या उसकी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट गेटिंग प्रमोशन इन द ऑफिसेस। कैन यू अंडरस्टैंड द वर्ड मिस साइका? Yes, ma'am. ओके मिस साइका, कोई इम्पेडिमेंट क्या जल्दी से बता दें सेंटेंस। Hundreds, obstruction, doing कोई something भी that. रुकावट, किसी चीज में कोई रुकावट बन गया, बन गई, कुछ समथिंग लाइक दैट। Okay. इसका ये कह सकते हैं कि हमारी जो आलसी हो गई या लेजीनेस हो गई, वो हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। This is good. Laziness is the impediment to our success. Laziness is the impediment to our success. Repeat it. Success. Repeat करें आप। Laziness is a impediment in our success. Yeah, this is nice. Impervious. Impervious. 24 word is impervious, not allowing fluid to pass through, unable to be affected by. The new raincoat is made of a material that is impervious to water. Impervious. Like पानी लग जाए वो अंदर, उसको मतलब ना प्लास्टिक नहीं होता जैसे, तो वो पानी नहीं आएगा अंदर ना, कोई फ्लोट फ्लोट कहते हैं, कोई लिक्विड या कोई पानी नहीं आएगा। फिर उसका रेन कोट है, उसको मटेरियल ऐसे बना है, इट इज इम्परवियस टू द वाटर। लाइक आई हैव अ पीस ऑफ क्लॉथ और आई हैव अ पीस ऑफ प्लास्टिक that is impervious, like it cannot allow the water to pass from it. Okay, 25 is impetus. 25 is impetus. Impetus. Impetuous. It is not impetuous. It is impetus, but we will just listen the pronunciation as well for all of you.
Impetuous. 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 Like he is like हम टी बोल रहे हैं, वो टी नहीं कह रहे, impetuous. ठीक है? impetuous T silent है Impetuous. या टी को आप सी करके प्रोनाउंस करें. Impetuous. impetuous Impetuous. Okay? करें? impetuous ओके. मिस्टर जियाद, आपको सेंटेंस बनाए impetuous का मैं मतलब बता देती हूँ मैं. एक्टिंग क्विकली एंड विदाउट थॉट और कियर, इम्पल्सिव, एकदम से कुछ भी बोल देना, ना सोचना ना कुछ करना. His impetuous decision to quit his job without a backup plan led to many difficulties. मतलब एकदम से उसने सडन डिसीजन लिया, कोई और दूसरी जॉब ढूंढी नहीं और पहली जॉब भी छोड़ दी, तो उसके लिए डिफिकल्टीज हो गई. इम्पेचुअस डिसीजन था उसका. तो मिस्टर क्या बोल रही थी मैं, जियाद आप बताएंगे सेंटेंस इम्पेचुअस पे. मिस्टर जियाद is, I think, is not available. Mr. Armin. Yeah, thank you so much. I can say that his or her impetuous action was the reason why he was arrested by 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 the police. क्या बोलना चाह रहे? What do you want to say? Impetuous decision क्या बोलने? Yeah, ठीक है. I see that his impetuous action was the reason why he was arrested. She was arrested. Okay, मतलब Yeah. he has done something wrong, something without thinking. That's why he get arrested. You want to say something like that? Yeah. Okay, fine. Okay, mashallah, we have completed our 25 vocabulary words. In these 25 vocabulary words, I give you the similar words also while discussing. We also talked on that. We have an half hour left. Okay. Okay. Now the second phase of our lecture is English tenses, structure and practice. Everyone is grown up here, adult, professional, everyone knows there are 12 tenses. ये आप हमारा स्टार्टअप है, हमारी स्टार्ट की क्लासेस है. मैंने कहा कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर टेंसेस का रख दूं. सबको ही पता है, सबने ही पढ़ा है, पर हम थोड़ा सा बट रखना चाहिए मैम, क्योंकि हम लोगों को मैं तो बिल्कुल भी टेंसेस में अच्छी नहीं हूँ. अब मैंने इसीलिए मैं यही चाह रही थी कि मैं ना थोड़ा ज्यादा बेसिक्स लेके चलूं. इसीलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों से इंट्रोडक्शन वगैरह भी लिया. इसको हम हल्का सा टच करेंगे, कोई इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगी ताकि आप लोगों की स्पीकिंग आसान हो जाए. देखिए सिंपल टेंस से होता है ना एवरीवन. अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं, मैं उर्दू इंग्लिश मिक्स बोलूं या जस्ट इंग्लिश में बोलूं? अपना मिक्स ज्यादा बेस्ट है. मिक्स ज्यादा है. मिस्टर अरमीन, आई ऑल्सो स्पीक उर्दू because in Pakistan our national language is Urdu. People get easily understand Urdu, but I am also telling in English also so that it will be easy for you, Mr. Armin, also. Okay, Mr. Armin? Yes. Yeah, I am speaking Urdu side by side English. Can you understand Urdu as well? Yes, of course. I understand very well. Yeah. Okay, you can understand Urdu as well. No, Urdu, no. I don't speak Urdu. Okay, even you cannot understand Urdu, na? You can just Urdu, understand no. English. I can't understand. Okay. For you, I am speaking English also. For the other students, I am also speaking Urdu because they will get some ease out of difficult words. Yeah, okay. Okay. I understand. Yeah. Okay, Ms. Ruxana, we are on tenses. Can you tell me how many tenses are there in English? I think 12. Yeah, you don't think, just be confirm. It's 12 tenses. Confirm yourself. 12 tenses. Sorry, 3. नहीं, मैं कह रही हूँ, आप सही कह रही हैं. 12 Present. tenses हैं. No, okay. Present, past, कैटेगरी future. कैटेगरी 3 है आपकी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जी. ओके. अच्छा, टेंस का मतलब भी आज हम जानेंगे. टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस? मिस रुखसाना, एनी आइडिया कि टेंस का क्या मतलब है भाई? क्या हमें सिखा रहे हैं टेंस बचपन से? टेंस का मतलब बोले.
पढ़ते आ रहे हैं लेकिन पता नहीं है टेंस का मतलब, बस ये है कि प्रेजेंट टेंस है। चले मैं बता देती हूँ। चले यहाँ पे आपको सबसे स्टॉकिंग भी पहले तो हो सकता है ना। जी मिस साइका क्या बोल रही है? मीन्स टेंसेस तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो कम्युनिकेशन या फिर टॉक के लिए यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। टेंसेस को आपका स्ट्रक्चर है इंग्लिश की, आप बनाते हैं और बोलते हैं। टेंसेस को बेसिकली मतलब होता है टाइम, टाइमिंग को डिफाइन करते हैं। Yes, time. या टेंसेस जो है टाइमिंग को डिफाइन करता है। तीन कैटेगरी से आपकी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट जो आपका प्रीवियस माजी की बातें, पुरानी बातें। प्रेजेंट जो आपका हाल चल रहा है, और फ्यूचर जो मुस्तकबिल की बातें। सब में चार ही, हर टेंस में चार कैटेगरीज है। एक सिंपल है, जिसे आप इंडेफिनिट भी कहते हो, सिंपल भी कहते हो। फिर कंटिन्यूस है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है। यहाँ पे प्रेजेंट खत्म हुआ, यहाँ पे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, मेरा तरीका क्या है कि मैं जो सेंटेंस बोलूंगी उर्दू में, आप लोग उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लाइक व्हेन आई टेक लैंग्वेज क्लासेस, तो इसी तरह होता था। टीचर उर्दू में बोलता था, इंग्लिश में बोलता था, सबको आता, सबको है। हम यहाँ पे, मैं उर्दू में बताऊंगी कि भाई उर्दू में प्रेजेंट क्या होता है। जब हम लोग एक डेली रूटीन की जब हमने बातें की थी, मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट यूज करना आप लोग। आप एक डेली रूटीन की बात कर रहे हो, रोज आप ये काम करते हो, तो हम सिंपल प्रेजेंट वहां पे यूज करेंगे। लाइक मैं खाना खाती हूँ, व्हाट्स द ट्रांसलेशन ऑफ इट? मिस्टर जाहिद बोले, मैं खाना खाती हूँ या खाना खाता हूँ। मिस्टर जाहिद नहीं, कोई और बोल रहे हैं। मिस साइका आप बोल रहे हैं। आई ईट मील। आई ईट मीट। लाइक आपने आई यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की ईट, और मीट, मीट मतलब मील ना, खाना, फूड। यस यस। मीट तो आपका गोश्त हो जाएगा, मील या फूड। मील भी मील। कहते हैं, यस। मील, MEAL, मील भी कहते हैं, और जी। फूड भी कह सकते हैं आप। तो आई ईट मील मतलब आपने आपने सब्जेक्ट यूज किया, ठीक है। फिर हम्म, वर्ब यूज किया, SES के साथ लगा। SES तो आई के साथ और वी के साथ नहीं यूज होता, पर ही सही। शी इट के साथ यूज होता है, ठीक है। लाइक शी प्लेज क्रिकेट, वो खेल, क्रिकेट खेलती है। शी है, थर्ड हम्म, पर्सन है, ही शी इट। और हम्म, आई वी के साथ क्या होता है? जैसे आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलती हूँ। आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। आई टेक क्लास, मैं टेक क्लास लेती हूँ। एक रूटीन की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है आपका, कोई हम लाइक हमारी क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन। क्लास, फिर आपका इज एम आर, आपका हेल्पिंग वर्ब है। फिर आपने वर्ब के साथ ING। उसने कहा, उन्होंने कहा सही है। Okay, I think Miss Sana have some problem with voice. Yes, we cannot hear her. Yes. So we have these two sessions, the yesterday and the today's session. These are the demo sessions, like a demo sessions, and our end goal is that the participant enable to have some conversational English, like some official talking, or to present some presentations in English, to explain in simple sentences. In the main idea is that the we have make the participant to encourage the participant to don't feel any hesitation to make some sentences, to speak any they want to feel, uh, they want to feel, or they want to say anything.
and the participant also tell us about what they want from this course, how we proceed it further. Can we make it more conversational, or we they have a feel that we make any changing like as Ms. Sana taught us there, the sentences or the difficult vocabulary words. So we just want the participant to take part. Anything they want in their mind to say. Miss Ruxana, Yes, sir. did you understand? Yes. Sir, I think that we should have some kind of discussion, and then Miss Sana or you or anybody tell us that whether it is right or wrong, so that we have Yeah, we can have more confidence to speak. yeah, that's the main purpose. That's the main purpose, and you have to speak very, very nicely. And when someone give encouragement, so the participant, I think the participant don't feel the hesitation about. We are the English is not our native language, and Yes. we are thinking in our mind in our native language and Yes. convert it into English and speak. So we have when we speak the English, we have some pauses. But if we have some practice and practice sessions, it's better. We feel better that we may gain some fluency. Yes. So, Mr. Ayaz, please speak anything. Do you feel and do you want to say? Hello. Okay. 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 So, so Miss Sana again with us due to some net problem. She offline. Mr. Ayaz, Ayaz, आप सुन रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. हेलो सलामिर. Yeah, Miss Sana, जी जी. we listening to you. हाँ वो Yeah, hello. yeah, Yeah, hello. there was some net issue, that's why I got disconnected. Okay. Okay. Sorry, you We say? were on sir, kindly share the screen sir Amit. Okay, मैं कर रही हूँ. We are seeing your screen. Can you see present continuous, present perfect? Visible. It's Okay, visible. ओके हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे थे कि जो है कोई काम भी प्रोग्रेस में चल रहा है. वी आर लिसनिंग द लेक्चर, हम लेक्चर सुन रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग द वाटर. प्रेजेंट परफेक्ट है कोई एक्शन भी कंप्लीट हो गया हो. आई हैव कंप्लीटेड द लेक्चर, मैं अपना लेक्चर. Okay, Miss Sana facing some, I think, net issue. So you guys are present here. Can give some feedback about the session.
So we may conclude it. Sir, it is very good. We are learning a lot of words and professional words that we can use in our professional life, and also it is good that in future Yeah, we yeah, can discuss yeah, the on some topics, yeah, so that we can so that we can easily speak. yeah. I think so. As the course progress, the participant feel some more courage to speak about. Oh, there is a call on WhatsApp. Miss Sana, ठीक है, call in busy. group, she face problem. Hello, Miss Sana. Yes, sir. I'm taking some feedback from participants on Zoom, and after that, I conclude that session. Can you listen me, sir? Hello. Yes, we listen you on Zoom. सर कोई नेट का इशू हो रहा है, हम टेंसेस पे थे, हमने अपनी वोकेबलरी कंप्लीट कर दी, डेली रूटीन कर लिया। सर मैं जरा 5 मिनट we may conclude here this session and take the feedback. Miss Sana gave her feedback, and now we request to Mr. Ayaz Ahmad in whether in English or Urdu, please give some feedback. अपना कुछ feedback दे। सर अयाज अहमद थोड़ा फीडबैक दे, क्लास को हम कंक्लूड कर रहे हैं अबाउट द लेक्चर, और आप क्या करना चाहेंगे कोर्स के बारे में। मिस्टर अयाज अहमद, I think ये फंसे हुए हैं। Okay, we take his feedback on by call, and Miss Susana already gave, and Mr. Arman. Mr. Armin देना चाह रहे हैं। Okay. Yes, Mr. Armin, speak up about the feedback of the class today. Mr. Armin, speak up. Yeah, I wanted to ask. I don't know. I don't know if there is a WhatsApp because I see a WhatsApp call. I don't know if it's for everyone or what. I wanted to understand, because I see that there is a call on WhatsApp also, Zoom meeting. I don't know. You We are have to on follow. Zoom, Mr. Arman. Okay, You thank are on you. Zoom meeting, and we want some feedback about course. Okay, thank you. Please tell us some feedback. Give your feedback. Mr. Armin, everyone, Yes, just disconnect I'm the here. WhatsApp call. I called the WhatsApp because I have the issue in connecting Zoom. Right now I am in Zoom. Just cut the WhatsApp call and give the feedback back on the Zoom. How was the class and how you think? Will you take the class? Will you be a part of this class? What are your thoughts about this? Give us a feedback. Yeah, as for me, really, I want to say that practice about English is very, very, very important, because it will allow us improve our professional English, which is very, very important. And I really appreciate the first introduction. I feel that we have a lot to learn, especially in English. Especially we speak English, but there are some particular and professional vocabulary that we have also to learn, what will improve our English every day. As for me, I'm happy. Have you decided you want to be a part of this course? Do you think ये course अच्छा है? This course is good for you?
and you want to be a part of this course? You will Yes, take. of course. Yes, of Okay. course. I want. Okay, Okay. thank you, Mr. Owen. Thank you. And Mr. Ayaz Ahmad, please unmute your mic. Okay. So, Ms. Saika, please unmute your mic and give your feedback. And as Ms. Sana asked, do you Yes, want sir. to इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू रखने के. Okay, you will try, not sure. Yes, sir. You are not sure. I'm sure. Okay. मिस साइका वो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि आप ये कोर्स लेंगी, मैं आपको इंशाल्लाह लग रहा है कोई मतलब समझ आ रहा है, स्किल आप सीखेंगी तो आप इस कोर्स का पार्ट बनेंगी, आगे चलेंगी. जी जी बिल्कुल. ओके, मतलब आपका पॉजिटिव फीडबैक है, यू विल प्रोसीड. बिल्कुल. Sir, what is the duration of this course? मिस सुल्ताना, इट्स अ 3 month course, 12-week course. Okay, okay. मिस So, सुल्ताना, आप भी कुछ फीडबैक देना चाहेंगी? मिस सुल्ताना, कोई I've फीडबैक? given already. मैं डिस्कनेक्टेड थी, शायद आप दोबारा बोलिएगा. okay. Ms. Susana, please repeat your feedback again. I already given, and I said that it is a very good and important course, especially for the professional people, to improve their professional and business communication. And I said that it is important that hello. I said that it is important to Yeah, take some topic and discuss on that in the yeah, group discussion. yeah. That's very nice idea. Ms. Sana, do you listen? यस, उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट है, ऑडियो पार्ट बनेंगी रुखसाना हमारे Yeah, कोर्स. but she gave suggestions that we have decide some topics on later in future stages for participant to for group discussion. It's a good idea. ओके मिस रुखसाना, देखिए ग्रुप डिस्कशन सब कुछ होगा, ये आपका स्टार्टअप है, मुझे लेना था इंट्रो के बच्चा किस लेवल पे है अभी. हम इस कोर्स में जो है हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, हम राइटिंग पे भी करेंगे, हम पूरा एक इंग्लिश का पैकेज अपना करेंगे कि बच्चे को काफी कुछ स्किल्स आ जाएं. जी स्टार्ट से ग्रुप डिस्कशन से कुछ आना भी तो चाहिए, बेसिस भी तो होनी चाहिए ना. जी जी. मैं पहली क्लास में आपको कैसे बोल सकती हूँ डिस्कस करें, आप क्या प्रिपेयर्ड हो किसी भी टॉपिक के लिए? नहीं, वो एक होता है ना मॉड्यूल के, हमें एक तो मॉड्यूल पता हो कि हम किस वीक तक जाके हम कोई ग्रुप डिस्कशन कर सकेंगे, और ये भी है कि इस वक्त मतलब एनालिसिस होना चाहिए एज ए टीचर आपका या सर आमिर का, कि इस वक्त हम किस लेवल पे हैं, और आफ्टर 12 वीक्स हम एक तो गोल है ना कि हमने किस लेवल तक पहुंचना है, और फिर हम किस लेवल तक एक्चुअली पहुंचे कहाँ तक हैं. ओके, आप ये अच्छा इट्स गुड आइडिया. जैसे ना आप थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा आउटकम्स. ओके सर, ओके. So any other participant want to say? मिस रुखसाना हो गई, मिस्टर अयाज, मिस साइका भी हो गई. Okay, that's fine. अयाज मेरे ख्याल उनका म्यूट है. अयाज है, वो आ ही नहीं रही लाइन पे, क्या करें, वो बिजी है. Okay, Miss Sana, we will take the feedback rest of participant on the call, and we decide in coming week about the class and inform all the participants. अरे सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिसीजन ले लिया फर्दर आप लोगों को डेमो फ्री सेशन की जरूरत है, या फिर अब हम अपना नॉर्मल क्लास स्टार्ट कर दें?
आप लोग मतलब सब प्रिपेयर्ड हो, सबने डिसाइड कर लिया है, यू विल स्टार्ट अप? Yes, मिस I have साइका to इस find. मिस रुखसाना बोल रही है? अच्छा, रेडी है। Yes, Rukhsana. ओके, मिस्टर अरविंद, आप भी यू हैव डिसाइडेड दैट Uh, यू आर गोइंग टू एनरोल has एंड decided, Miss Saika has decided, Miss Rukhsana has decided, Ayaz Ahmad also has decided, and Miss Tahira has तो मिस्टर decided. जाहिद जो है वो व्हाट्सएप पे तो कनेक्टेड है, मिस्टर जाहिद कहाँ गए? Mr. व्हाट्सएप पे Zahid have some problem with Zoom, I think. So he has also decided to participate in this course, and we will take the consent of other participant on phone in next ओके week. ओके पार्टिसिपेंट्स, मैंने सेशन 1 आई हैव शेयर्ड द स्लाइड्स ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, पर इसमें कुछ चीजें रह गई थी, आपकी टेंसेस और आपकी प्रेसी राइटिंग, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना हो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा इंट्रो दे दूंगी, फिर देखते हैं आप क्या प्लान अप करते हैं हम। ठीक है, Yeah, the parts I think in the stages as course progress, the participant will make it more conversational, more group discussions, and they have the benefit that they take a habit to speak. We don't make the participants to go up very advanced level, but I think the participant, if they interested in this course, they definitely feel as I think that our end goal is that they have a ability to conversate their as they think, फिर रुखसाना ये आपका as they face in daily routine, in their work life, in their domestic life, whatsoever. मिस रुखसाना, आर यू Yes, हियर? ये yes. आपका क्वेश्चन है ना कि क्या आप लोग सीखेंगे इसमें। मिस Ye- मैं तो अपनी फुल कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इंग्लिश का बेस्ट एफर्ट से पढ़ा सकूं, बट आप लोगों ने ye- पार्टिसिपेट करना है, जो मैं ye- बोलूंगी कि आप लोग करो, असाइनमेंट्स करें, Hmm. ये करें, और क्लास में पार्टिसिपेट करना है, क्लास में पार्ट बनना है, तो आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। आप लोग Hmm. प्रोफेशनल लाइफ में आपको ईमेल्स करने होते हैं, लेटर्स होते हैं आपके, स्पीकिंग होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो सब हम करेंगे। ठीक. आप लोगों की मतलब आप लोगों की क्या नीड्स हैं, किसी की कोई होगी, क्लाइंट से आप किस तरह से टॉकिंग करते हैं। एक थी हमारी मिस कुलसुम, वो कल आई थी, आज शायद नेट का इशू है या क्या, वो आई नहीं। उनको क्लाइंट से बात करने में था कि मैं वर्बली करना चाहती हूँ, वो हम सीखेंगे, वो हम टाइम टू टाइम करेंगे, जिसकी जो जो नीड्स है वो करेंगे, पर बेसिक हमारा जो है कि आप लोग कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सको, लिख सको, और अपने काम में एक्सेल कर सको, ये है बेसिकली ये जी कोर्स। बिल्कुल सही है. लेकिन मैं ये कह रही थी ना कि कोई एक एनालिसिस या हम खुद करेंगे या कोई ऐसा टूल है, कोई एनालिटिकल टूल है जिससे पता चला कि इस वक्त हम किस स्टेज पे हैं, किस लेवल पे हैं इंग्लिश के, और बस आफ्टर ये 12 वीक मेरे जो ख्याल हम. से ये जानने की आपको जरूरत नहीं है कि आप किस लेवल पे हो, ये मुझे जानने की जरूरत है Now कि we have a कहाँ tool, पे खड़े हुए हैं। Miss Sana. We have a tool. हाँ, We give a feedback about their participate as they participate in this course. We write emails all the participant and give the feedback of their participation. अब वो तो हम करेंगे सर, पर अभी तो मेरे ख्याल से स्टार्ट में वो पार्टिसिपेट करें, और फिर वो सीखते No, जाएंगे Miss कि Sana, we do not do that. It's do the Zoom itself by AI. अच्छा, सर कह रहे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोगों का लेवल ऑफ टेस्टिंग बताएंगे। ठीक है, ठीक है. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेके चलेंगे, क्या एआई टूल्स हम किस तरह यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन में,
बट आप लोग जितना पार्टिसिपेट we, करेंगे, जितना पार्ट uh, बनेंगे, उतना आप लोग एक्सेल करेंगे। Yes, sir, we have a AI tool and we are active in our Zoom as we are discussing in this session the Zoom recording all the our things and give us a summary our participants and give us the opinion about how we proceed the course and it will give us the suggestions as well. सर अब लेट्स जस्ट फाइंड अप, इट्स 10 o'clock, और बाकी जो फर्दर जो होगा ना, कब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी, वो हम आप लोगों को अनाउंस कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो डिस्कस करके फुल हम लोग ना मैनेजमेंट। पार्टिसिपेंट और सर टाइम प्लीज 9 बजे से ऑनवर्ड ही रखें, अच्छा 9 क्योंकि बजे जी 8 बजे थोड़ा अर्ली भी हो जाता है, मतलब खाना वगैरह चल रहा होता है उस चले। वक्त। आप जितने पार्टिसिपेंट हैं आप लोग को मजा आएगा इसमें ना, थोड़ा सा हम बोलेंगे हम सब इसी तरह इंग्लिश में कोई ठीक है, टाइम को भी रुकना ऐसा ना करेंगे। हो थोड़ा। अफ्तार में वैसे भी अफ्तारी आ रही है, अगर रमजान है 9 बजे के बाद ही करेंगे हाँ जैसा ना 9 बजे इंशाल्लाह। करेंगे। और मैं ये कह रहा था कि हम इसको थोड़ा सा, ये है कि आपकी तो थोड़ी इंग्लिश ज्यादा प्रोफेशनल है, तो बाकी हम सब एक जैसे ही हैं, तो हम इसको नहीं थोड़ा सर, वो करेंगे एक दूसरे से बातचीत, और थोड़ा सा हमारा जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा। जी सर, जी सर।